Now, yesterday we discussed about the first page of the lesson, and today we are going to read the another page of this lesson. The name of the lesson is Flying Together. We already discussed that some of the geese lives lived on a big banyan tree, and one of goose was a old bird, and he advised every geese to cut the creeper, but they all refused to do it. Now we come to the reading portion of second page. Well, there is no hurry, they replied. The creeper is very small. It would be a pity to destroy it. Destroy the creeper while it is still young, the old bird advised. Now it is tender and you can cut it easily. Later it will become hard and you will not able to cut it. We will see, answered the birds, but they did not destroy the creeper. They forgot the wise old bird's advice. As the creeper grew, it began winding its way up the tree. Stronger and stronger it became until it was as strong as a thick rope. One morning, when the geese had gone out in search of food, a hunter came to the forest. So, this is where the wild geese live. He said to himself, when they come back in the evening, I shall catch them. The hunter climbed up the tree with the help of the creeper. He got to the top and spread his net there. Then he climbed down and went away. In the evening, the geese returned home. They did not notice the net. As they flew into the tree, they were trapped. They struggled hard to get out, but could not. Help, help, cried the geese. We are caught in the hunter's net. Oh, what shall we do? This is the reading of this two pages. Just I want to explain you in English as well as in Hindi. Okay? So, I will read one by one line and translate it in Hindi. Okay? Well, there is no hurry. अरे भाई इतनी जल्दी क्या है? वो जो गीस थे वो कहते हैं कि अरे भाई इतनी जल्दी क्या है? They replied, उन्होंने कहा, The creeper is very small. अरे अभी तो छोटी सी बेल है.
इट वुड बी पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ। अरे बड़ी बेकार, मतलब निर्दयता वाली बात होगी, इतना सा पौधा है उसको हम डिस्ट्रॉय कर दें। डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाई इट स्टिल यंग, द ओल्ड बर्ड एडवाइज। बट वो जो बुढ़ा पक्षी था, जो दिमागदार पक्षी था, उसने कहा अभी ये छोटा है, इसको अभी ही काट दो। उसने ऐसी सलाह दी। नाउ इट इज टेंडर एंड यू कैन कट इट इजीली। अरे अभी ये मुलायम है, नरम है, हल्का है, और तुम इसे आसानी से इजीली जो है इसको कट कर सकते हो। लेटर इट विल बिकम हार्ड एंड यू विल नॉट एबल टू कट इट। और फिर ये बड़ा हो जाएगा, मोटी हो जाएगी, इसकी जो शाखाएं हैं मोटी हो जाएगी। यू विल नॉट एबल टू कट इट, और फिर तुम इसको कभी भी काट नहीं पाओगे। क्या नहीं कर पाओगे? काट नहीं पाओगे। मीन्स द ओल्ड मैन try to make them understand that the young geese, they just go to the root of the tree and cut the young creeper, but all geese refused. All geese refused. We will see. अरे भाई देख लेंगे मीन जस्ट दे जस्ट गिव एक्सक्यूज। अरे देख लेंगे भाई, देख लेंगे, कर लेंगे। आंसर द बर्ड्स बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर। लेकिन उन पक्षियों ने उस जो क्रीपर था, वो जो बेल थी, उसको काटा ही नहीं, हटाया ही नहीं, डिस्ट्रॉय नहीं किया। दे फॉरगॉट द वाइस ओल्ड मैन एडवाइस। और वो जो उस बुढ़े पक्षी ने, वो दिमागदार पक्षी ने जो एडवाइस उनको दी थी, वो उसको भुला देते हैं, भूल जाते हैं। एज द क्रीपर ग्रू, जैसे जैसे वो बेल बढ़ती है, इट बिकेम वाइंडिंग इट्स वे अप द ट्री, और वो धीरे धीरे उसके ऊपर बढ़ जाती है। क्या कर जाती है? बढ़ जाती है, यानी कि बेल जो होती है वो नीचे नीचे से ऊपर ऊपर चढ़ जाती है। क्लाइंब यानी चढ़ना। स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर इट बिकेम अंटिल इट वॉज स्ट्रोंग एज थिक रॉक। और वो बढ़ती चली जाती है, और वो इतनी मजबूत हो जाती है, इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि जैसे कोई रस्सी हो। रॉक मीन्स रस्सी हो, ठीक है। वन मॉर्निंग व्हेन geese had gone out in search of food, जब सारे जो पक्षी थे वो जो कहाँ चले गए? अपना दाना चुगने, अपना खाना वाना खाने। तो क्या हुआ? अ हंटर केम टू द फॉरेस्ट, और वहां पर एक कौन आ गया? हंटर, यानी कि शिकारी। अब शिकारी क्या करेगा भाई? उनको दाना वाना तो खिलाएगा नहीं, वो तो उनको पकड़ के ही ले जाएगा ना। He said to himself, उसने, शिकारी ने जो है, हंटर आ गया वहाँ पे फॉरेस्ट में। So this is where the wild geese live, और वो कहाँ आया? जहाँ पे वो जो पक्षियों का झुंड रहता था। He said to himself, वो अपने आप से कहता है, when they come back in the evening I shall catch them। तो जैसे ही वो पक्षी शाम को आएंगे तो मैं उनको पकड़ लूंगा। क्या कर लूंगा? पकड़ लूंगा। कैच देम। द हंटर क्लाइम्ड अप द ट्री विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर, और वो जो हंटर था वो उसके सहारे से, वो बेल जो उसमें बड़ी हुई थी, एकदम स्ट्रॉन्ग बेल, उसको पकड़ के ऊपर चढ़ गया। He got to top and spread his net there, और उसने क्या किया? उसको, वो जो पेड़ था उसके ऊपर अपनी जाल को बिछा दिया, पूरे जाल को बिछा दिया। Then he climbed down
डाउन एंड वेंट अवे। वो फिर वहाँ से उसी को पकड़ के वापस और नीचे आ गया, सीधा नीचे आया और चला गया। इन द इवनिंग द गीज रिटर्न होम। अब शाम को क्या हुआ, सारे जो पक्षी थे वो अपने घर आए, उस वो जो ट्री था उस पे आए। दे डिड नॉट नोटिस द नेट। लेकिन अब शाम को आए हैं, थके आ रहे हैं, तो उनको पता ही नहीं चला कि नेट है यहाँ पे। तो एज दे फ्लू इनटू द ट्री दे वर ट्रैप्ड। अब जैसे ही वो वहाँ पे उस पे आए पेड़ पे, तो वो जाल में फंस गए। दे स्ट्रगल्ड हार्ड टू गेट आउट। उन्होंने बहुत कोशिश की, ऐसे 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 ऐसे, लेकिन वो निकलने की उन्होंने बहुत कोशिश की, बट कुड नॉट। लेकिन वो निकल नहीं पाए। हेल्प हेल्प क्राइड द गीज, वी आर कॉट इन हंटर्स नेट, ओह व्हाट शैल वी डू। अरे भाइयों बचाओ बचाओ, हम जो है इस नेट में फंस गए हैं, अब हम क्या करें। व्हाट शैल वी डू, हम क्या करें। ठीक है बच्चों, अब आप एक काम करेंगे। अभी तक आपका काम आ नहीं रहा है, लेकिन फिर भी आप ये जो लेसन है इसको मोबाइल लेकर पूरा इसमें आप सुने, और जो वर्ड्स हम आपको बोलते हैं उनको उसमें देखें, और जिस वर्ड का मीनिंग आपको समझ में नहीं आता उसको अपनी कॉपी में लिख लें, और उसको कॉपी में लिखने के बाद उसको डिक्शनरी में देख लें, और अगर फिर भी नहीं आता तो उसको मेरे पास लिखकर भेज दें। आई समझ में। और देखिए, एकदम खुश रहना है। क्या करना है, खुश रहना है, खुश, और अपना काम समय पे करना है। सब लोग आपको जो है क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ रहे हो, है ना, और मम्मी पापा को परेशान तो नहीं कर रहे, और ज़िद बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि अभी लॉकडाउन है। आई बात समझ में। और कोशिश करना है कि इन दिनों ज़्यादा से ज़्यादा अपना रीडिंग करने में, और जितनी फास्ट रीडिंग होगी आपकी, जितनी जल्दी रीडिंग होगी, जैसा हम कराते थे ना क्लास में, जिसकी जितनी फास्ट रीडिंग होगी उसको जब हमारे स्कूल खुलेंगे तो हम उनको प्राइज़ देंगे। और इसलिए अभी आपके पास समय है कि आप अपना जो है रीडिंग को और राइटिंग को बेस्ट करके लेके आएँ, फिर हम आपको स्पोकन सिखाएंगे। ठीक है, क्या सिखाएंगे बताओ बताओ, स्पोकन सिखाएंगे। आई समझ में। ओके।